السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاستی آبپاشی اور شہری سپلائز کے وزیر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ فصل کی حفاظت کے لیے کٹائی ہوئی فصل کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ذخیرہ کرنے کے لیے روٹ میپ تیار کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کسان کو یقین دہانی ملے گی اور خوراک کی حفاظت کو بڑھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ چونکہ تلنگانہ پورے ہندوستان میں اناج کی پیداوار میں سرفہرست ریاست ہے، اس لیے انہوں نے انکشاف کیا کہ پیدا ہونے والے اناج کے تحفظ کے لیے منصوبے تیار کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ سائلو سسٹم کو لاگو کرنے کا منصوبہ بنا رہی تاکہ کسانوں کے ہاتھ میں اناج کے نقصان کا روکا ہو۔ اس مقصد کے لیے وزیر اتم کمار ریڈی نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا اور اسٹیٹ سول سپلائی ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ میٹنگ بھی منعقد کی۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے وزراء کی سالانہ میٹنگ میں شرکت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کو مرحلہ وار فروغ دیا جا رہا۔ وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں مرحلہ وار الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ٹرانسپورٹ وزراء کی سالانہ میٹنگ نئی دہلی میں ہوئی۔ وزیر پونم پربھاکر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے وضاحت کی کہ تلنگانہ الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دے رہا۔ جب ای وی پالیسی متعارف کرائی گئی تو تلنگانہ میں صرف 4376 الیکٹرک گاڑیاں تھیں، لیکن 2025 تک وزیر نے کہا کہ یہ تعداد بڑھ کر 2,58,325 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں 2024 میں ایک نئی اسکریپ پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اگر پرانی گاڑیوں کو اسکریپ کیا جاتا ہے تو ٹیکس میں کمی اور جرمانے کی معافی جیسی مراد کا اعلان کیا گیا۔ نیز 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کو اسکریپ کرنے کے لیے واضح ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نجی گاڑیوں پر گرین ٹیکس لگانے اور انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد پولیس نے کماٹی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے ایک امیت سنگھ نامی شخص کے قتل کے کیس کو حل کرتے ہوئے 7 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 3 جنوری 2026 کو پیش آیا تھا۔ حسین عالم حیدرآباد کی رہائشی نیہا نے شکایت درج کرائی کہ ان کے شوہر امیت سنگھ پر مہاراج گنج علاقے میں پوچمہ مندر کے قریب نامعلوم افراد نے چاقو سے حملہ کیا۔ شدید زخمی حالت میں امیت سنگھ کو فوری طور پر عثمانیہ جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ بعد ازاں پولیس نے مقدمہ اقدام قتل سے تبدیل کر کے قتل میں درج کیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ پوجا اور امیت سنگھ کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے پر پہلے بھی تنازعات پیدا ہوئے تھے اور سمجھوتے کی کوششوں کے باوجود یہ تعلق مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوہر متوکٹی روی کی جانب سے سمجھانے کے بعد پوجا نے امیت سنگھ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس کے باوجود امیت سنگھ مبینہ طور پر پوجا کو مسلسل ہراساں کر رہا تھا۔ پوجا نے اس ہراسانی کی اطلاع اپنے شوہر روی کو دی، جس کے بعد روی نے امیت سنگھ کو ختم کرنے کی سازش تیار کی۔ پولیس کے مطابق منصوبے کے تحت پوجا کو امیت سنگھ سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا اور اسے مہاراج گنج علاقے میں پوچمہ مندر کے قریب بلایا گیا۔ جیسے ہی امیت سنگھ وہاں پہنچا، روی اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ موقع پر آ گیا۔ اس دوران جھگڑا ہوا اور مرکزی ملزم ماتوکٹی روی نے امیت سنگھ پر چاقو سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اسے علاج کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے اس کیس میں مجموعی طور پر 7 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جن میں ماتوکٹی روی، ماتوکٹی پوجا، ماتوکٹی پردیپ کمار شیٹکر، آکاش شیٹکر، انیش مہیش کمار پتی اور اجے اوستھی شامل ہیں۔ واردات میں استعمال ہونے والا چاقو، 3 موٹر سائیکلیں اور 7 موبائل فونز بھی پولیس نے ضبط کر لیے۔ تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ حیدرآباد پولیس کے مطابق کیس کی مزید تفتیش جاری ہے اور واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہمیں یہ 3 جنوری 2026 میں کمپلینٹ شریمتی نیہا سے حسین عالم لمٹس کبوترہ خانے میں رہتے ہیں، اس سے کمپلینٹ آیا کہ اس کا ہسبینڈ امیت سنگھ ٹھاکر کو اس کے گھر کے پاس اس سے پہلے روی اینڈ پوجا بول کے رہتے تھے 5 سال کے پیچھے۔ وہ لوگ اس کا روی کا وائف پوجا اور اس کا کمپلیننٹ کا ہسبینڈ امیت کو کچھ افیئر ہے بول کے اس پہ جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا ہونے کے بارے میں ان لوگوں کا ارلیئر 3 ایئرس بیک راجندر نگر ایریا میں ان لوگوں کو وہ دونوں کا فیملیز کا ایلڈرس اچھا کاؤنسلنگ کرنے کے بعد بھی وہ لوگ یہ روی اینڈ
पूजा नहीं, पूजा एंड अमित उसका एटीट्यूड नहीं बदले थे। एक कंटिन्यूएशन में एक बार कंप्लेंट दिए तो छोटा झगड़ा हुआ बोल के कंप्लेंट दिए तो उधर एक पेटी के वो केस भी डाले थे। उधर पेटी केस में वो अमित 2 दिन के लिए जेल भी गया था। उन लोगों को कैश टेलर से 2 बार भी उसको काउंसलिंग किया गया, फिर भी ये लोग बदलते नहीं, बदले उसके कैरेक्टर। वहां से जो रवि एंड उसका वाइफ पूजा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार आईपीएस ने खबरदार किया कि शहर में खाने में मिलावट को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि मिलावट के रैकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस और फूड सेफ्टी अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तैनात की जा रही। बंजारा हिल्स के TGICC में सिटी ACP वीसी सज्जनार आईपीएस की सदारत में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सीनियर अहदेदारों के साथ खुराक में मिलावट को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में एक तैयारी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में बात करते हुए CP ने कहा कि वो खाने में मिलावट को एक मामूली जुर्म के तौर पर नहीं देखते बल्कि उसे कत्ल की कोशिश के तौर पर देखते हैं जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि न सिर्फ सड़क किनारे छोटे ताजरों पर छापे मारे जाएंगे बल्कि इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पर भी छापे मारे जाएंगे जो मिलावट का जरिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खुसूसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाज़ेह किया जाएगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। CP ने खुराक में मिलावट को कंट्रोल करने में फील्ड सतह के चैलेंजों और पुलिस और फूड सेफ्टी हुकाम के साथ उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर अहदेदारों ने कई तजावीज़ भी पेश की। उनको मद्देनजर रखते हुए CP ने वाज़ेह किया कि मिलावट को रोकने के लिए एक SOP बनाया जाएगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। हैदराबाद जिले कलेक्टर हरिचंदना दासारी ने कहा है कि हैदराबाद जिले को खेलों में सबसे आगे रखा जाना चाहिए। कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर जितेंद्र रेड्डी के साथ जिम खाना ग्राउंड में CM कप के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा, हुकूमत खेलों के शोबे को अवलीन तरजीह देती है और कलेक्टर ने उम्मीद जाहिर की कि जिले के खिलाड़ी तमाम खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। क़ब्ल अज़े उन्होंने तलबा से सलामी ली। उन्होंने जिले हैदराबाद के खेलों के प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर कई खेलों में हिस्सा लेने में रियासत में सबसे आगे रहने पर जिले को मुबारकबाद पेश की और इन नौजवान खिलाड़ियों को देखकर बहुत खुशी हुई जो चीफ मिनिस्टर कप में हिस्सा लेने के लिए इंतहाई जोश व खरोश से तैयार थे। उन्होंने कहा कि चूंकि फिलहाल CM कप का दूसरा एडिशन जारी है, इन मुकाबलों का इनेकाद ग्राम पंचायत सतह से लेकर मंडल, कानून साज असम्बली, हलके, जिले और रियासती सतह तक किया जा रहा। उन्होंने इस मौके पर याद दिलाया कि रियासती सतह के मुकाबले हैदराबाद में मुनक्किद होंगे। उन्होंने इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो अपनी सलाहियतें दिखाएं और खेल जीतें। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप जीत या हार से ज्यादा अहम है और आप में से बहुत लोग पहले ही खेलों के बहुत से मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। उन्होंने कहा कि इस कप के साथ साथ तेलंगाना हुकूमत स्कूली सतह पर खेलों के कई प्रोग्राम मुनक्किद करेगी और खेलों को वसी पैमाने पर फरोग़ देगी। उन्होंने कहा कि अक़लियती बहबूद के स्कूलों में बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का भी इनेकाद किया जा रहा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC हेड ऑफिस में नए मुक़र्रर करदा जोनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स AEs DEEs के लिए सेहत और सफाई सुथराई पर एक वसीउ ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद शहर की सेहत आमा, सफाई के बुनियादी ढांचे और जारी फ्लैगशिप इक़दामात के बारे में एक जामे तफ़हीम फराहम करना था। सेशन में तमाम विंग्स के सीनियर अहदेदारों की शिरकत देखी गई, बशमुल सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के DEEs और AEs, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ, AMOHs, वेटनरी डायरेक्टर्स, सीनियर और असिस्टेंट एंटोलॉजिस्ट, कंसर्शंस और नुमाइंदे CND बेस्ट ऑपरेटर्स के अलावा एडिशनल कमिश्नर और जोनल कमिश्नर मौजूद रहे। अहदेदारों को GHMC के 2053 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले वसी सफाई के कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और अपनी तीसरी बहार में दाखिल हो गई। रियासती रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि उन 2 सालों में हुकूमत ने तरक्की और बहबूद को मसावी तरजीह देते हुए रियासत तेलंगाना के लिए एक वाज़ेह नई सिमत दिखाई है। पीक संस्था की तरफ से तैयार करदा यादगार बाउनवान राइजिंग रेवंत रेड्डी गवर्नेंस के 2 सालों में 10 साल की तरक्की की नकाब कुशाई वज़ीर ने हुकूमती मुशीर P सुदर्शन रेड्डी के साथ
साथ उनकी रिहाइशगाह पर की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि अवाम के एतमाद को बरकरार रखते हुए तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत आने वाले दौर में तेज तर तरक्की और वसी तर फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी और हुकूमत के हर फैसले का महवर अवाम होंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना को दोबारा पटरी पर लाने की जिम्मेदारी ली, जो 10 साल से लापरवाही, बदउनवानी और मुतकब्बर हुक्मरानी की वजह से पीछे है। उन्होंने कहा कि वो अवाम की उमंगों को पॉलिसियों में बदल रहे और रियासत को अल्फाज से नहीं बल्कि आमाल से चला रहे हैं। नामुर माहिर माहौलियात माधव गाडगिल के इंतकाल पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर माहौलियात जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जारी अपने तफसीली बयान में उन्हें महज एक साइंसदान नहीं बल्कि कौम की तामीर में फाल किरदार अदा करने वाली गैर मामूली शख्सियत करार दिया। जयराम रमेश के मुताबिक माधव गाडगिल गुज़िश्ता 5 दहाइयों से तलबा, मुहक्किकीन, पॉलिसी साजों और अवामी तहरीकों के लिए रहनुमाई का मजबूत हवाला थे। जयराम रमेश ने कहा, माधव गाडगिल एक आला पाए के तालीमी साइंसदान होने के साथ साथ फील्ड रिसर्चर, इदारे साज और अवाम से मुयसर राब्ता कायम करने वाले दानिश्वर थे। उन्होंने जदीद साइंस की आला तरीन जामियात से तालीम हासिल की, मगर साथ ही रिवायती इल्मी निज़ाम खास तौर पर हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी मुकामी दानिश के पुख्ता हामी रहे। उनके मुताबिक यही इम्तिजाज माधव गाडगिल को अपने हम असरों में मुनफरिद बनाता है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में आलूदा पानी पीने से होने वाली अमवात को बीजेपी हुकूमत की संगीन नाकामी करार दिया। नई दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में अब तक 18 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि करीब 100 लोग अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन हुकूमत संजीदगी दिखाने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। पवन खेड़ा ने कहा, इंदौर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत तकरीबन 9 मरतबा मुल्क का सबसे साफ शहर करार दिया गया, मगर आलूदा पानी से होने वाली ये अमवात इस मुहिम और हर घर जल मिशन की हकीकत को बेनकाब करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 22 जुलाई 2022 को पाइपलाइन बदलने के ठेके की मंजूरी मिल चुकी थी तो इस पर अब तक काम क्यों नहीं हुआ। उनके मुताबिक इस ताख़ीर के पीछे कट कमीशन का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि मरकजी वज़ीर दाखिला के हलक़े गांधीनगर में भी टाइफाइड फैल रहा, मगर कौमी मीडिया में इस पर कोई बहस नहीं हो रही। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी तो पानी का काला बताया गया, बीजेपी हुकूमत आई तो पानी पीला हो गया, मगर असल मसला यानी अवामी सेहत पर बात नहीं की जा रही। मरकजी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान में मरदमशुमारी 2027 का पहला मरहला अप्रैल से सितंबर 2026 के दरमियान अंजाम दिया जाएगा। इस मरहले में तमाम रियासतों और मरकज के ज़र इंतज़ाम इलाकों में घरों की फहरिस्त साजी और रिहायशी मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि हर रियासत और मरकज के ज़र इंतज़ाम इलाके के लिए 30 दिन की मुद्दत मखसूस की जाएगी, जिसके दौरान घरों की तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरों के फहरिस्त साजी के 30 रोजा अमल के आगाज से कबल 15 दिन की मुद्दत के लिए खुद शुमारी कारी का मुतबादल भी फराहम किया जाएगा, ताकि शहरी अपनी तफसीलात खुद दर्ज कर सकें। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि मरदमशुमारी का ये अमल 2 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान घरों की फहरिस्त साजी और रिहायशी मरदमशुमारी की जाएगी, जबकि दूसरा मरहला फरवरी 2027 में आबादी की बाकायदा मरदमशुमारी पर मुश्तमिल होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।